Well, all the experiences are somewhere, if I sum it down, are, say, good only. But then one thing I learned the hard way is in this industry, everyone is your friend and no one is your friend. You Okay. kind of have to navigate yourself because it kind of calls you in. And once you're in there, then you kind of get lost also and then you find your way. So, yeah, everyone is your friend and no one is your friend. So meet Jitesh, the model, the actor, and he's also walking the ramp for us, IFJD Fashion Show. So we are just going to share fun moments Of and some course. serious moments. So tell us, Jitesh, when did you enter into modeling? I entered when I was 19. Okay. So I never had any plan to become a model or anything of that sort. My only qualification to be a model is that I'm tall. Okay. Nothing else. I didn't do any training or anything of that sort. I back in time I just joined the gym, and then shot some pictures with a friend of mine, uploaded on Facebook, and a coordinator from Mumbai just texted me that if you could come and audition. So back in time I was in my hometown, Nasik. I thought I was not doing anything. Let me just give it a shot, and that was a show for Vikram Fadnis. That was my first show, and that's how I got into fashion, and then I never looked back. Right. तो आपने कौन से सेलिब्रिटी के साथ ज़्यादा काम किया है? Could you just name some people and some experiences if you want to share? Uh, मेरा recent experience बड़ी celebrity के साथ आपको बताओ तो was with Ranbir Kapoor. Oh. I was working with him on this film called तू झूठी मैं मक्कार for a small chunk. But उनसे एक चीज़ मैंने सीखी that never let the star inside or like outside the people that they call you get onto your head. He never takes himself that seriously that when you see him, it's like, oh, that's Ranbir and all of that. But then he is not a star in like when he presents himself. So yeah, that's my experience. And when I met him, he's like, hi bro, what's up? What are you doing? This and that. So yeah, that's one thing I learned from him. And other than that, I've met a lot of celebrities and worked with them. So I also work as an assistant director. I do a lot of writing. तो उस चक्कर में ना मेरी बहुत से लोगों से बात होती है. जैसे बी प्राक के साथ मैंने काम किया है. तो इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि वो सिर्फ अपने काम से प्यार करते हैं. बाकी कोई स्टारडम या ऐसा कोई सीन नहीं होता. हम उनको बनाते हैं कि हाँ यार कोई बहुत बड़ा आदमी है तो कोई अलग ही एटीट्यूड होगा या ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है. सो दिस प्रोफेशन जो प्रोफेशन में आप है उसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं. कभी काम होता है, कभी काम नहीं. इट्स नॉट लाइक आप रोज सुबह एक ही टाइम पे काम पे जाते हो और महीने की सैलरी मिल गई. सो हाउ डू यू मैनेज दैट? इनिशियली तो बहुत तकलीफ होती थी कि किस तरीके से मैं काम करूँ, क्योंकि पहले जब काम मिलता था तो मुझे लगता था कि अरे नए नए होते हो तो बहुत सारा काम मिल जाता है. मुझे तो मिल गया था बहुत सारा काम नया नया. फिर 3-4 महीने के बाद थोड़ा स्लो हो गया. फिर मुझे लगा कि अब क्या कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं. मुंबई तो आ गया हूँ मैं अभी. फिर धीरे धीरे मुझे समझा कि आपको आपके फाइनेंसेस इस तरीके से प्लान करने पड़ेंगे जैसे आप मान लो 1 महीने में काम कर रहे हो तो उसको इस तरीके से प्लान करो कि आप अगले 2-3 महीने के लिए सस्टेन कर जाओ और साइमल्टेनियसली कुछ और चीज़ें करते रहो जो आपको उस सिटी में रहने का सहारा बने या whatever you call it. So how do you maintain yourself? What's your routine? You have to be fit. You should have a good face because that's your profession. So आप अपने आप को कैसे maintain करते हो? सब लोग कहते हैं कि मॉडल हो तो जिम जाओ और जिम जाके बॉडी बनाओ, बट फिर वो एक टाइम के बाद है ना स्टैग्नेंट हो जाता है. आप जिम जाके भी बोर हो जाते हो कि मैं कितना ही जिम जाऊँगा और कितना ही एक ही तरीके का वर्कआउट करूँगा. तो मैंने तो अपने लिए एक चीज़ फिट की है कि कोई भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी पकड़ लो जिससे आपको करने में मज़ा आता है. जैसे मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो वो मेरा एक फिटनेस का ऐसा चीज़ है जो मैं मज़ा भी कर लेता हूँ और मेरी बॉडी भी एक तरीके से फिट ही रहती है. तो मैंने उसको उस तरीके से रखा. और जिम तो चल रहा होता है, बट जिम का ऐसा नहीं कि जिम के सहारे ही मैं फिट रह सकता हूँ. और कोई एक ऐसी एक्टिविटी पकड़ लो जो आपको लगेगा कि हाँ ये करके मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई एफर्ट ले रहा हूँ फिटनेस की तरफ, बट ये मेरा डे टू डे लाइफस्टाइल बन गया है अभी. So because you're fit, you're tall, you're good looking, you're into that profession, how do you handle girls' fan following? इट्स उसको सीरियसली मत लो. आई मीन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा. सीरियसली मत लो. सीरियसली मत लो इन द सेंस. आई मीन ऑफ कोर्स उनका इनोसेंट वो होता है कि वो आपको आके अप्रोच करेंगे. दे विल बी लाइक पिक्चर ले लो, ये कर लो, बात कर लो. बट वही है कि जस्ट गिव देम अटेंशन.
डाउन द लाइन मुझे एक चीज़ तो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान एंड आई वुड वांट टू बी लाइक हिम. इफ अगर लड़कियों के अटेंशन के बारे में बात करें तो उनको जितनी अटेंशन लड़कियों की मिलती है उतनी शायद ही किसी और आदमी को मिली होगी. True. तो आप उनसे अगर जेंटलमैन वाली क्वालिटी पकड़ लो तब तो फिर आपको कभी बॉदरेशन होगा नहीं इस चीज़ का कि कोई लड़कियों का अटेंशन हो तो उसको हैंडल कैसे करे. जस्ट बी ए जेंटलमैन और सारी चीज़ें बस अपने आप जगह पे आ जाएगी. सो अभी तो बहुत सारा वर्ल्ड चेंज हो गया है. लड़कियां तो को अटेंशन देती है, आपको लड़के भी अटेंशन देते हैं, तो हाउ डू यू हैंडल देम? वो मतलब इट्स कुछ बोल दूंगा मैं तो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी. पर जो अटेंशन दे भी रहे होता है ना तो ले लो, अटेंशन मिल रही है तो. So और there तो are people in that in your profession that men's also give attention, जो हम लोग ने सुना था. हाँ, बट आप कभी भी अगर कोई इफ देयर सम कोई लड़का है या कोई मेल है जो आपको अटेंशन देना दे रहा है तो आप उसको कभी ये मत कर देना कि अरे आप कैसे, जैसे आप ऐसा किसी को फटकार देते हो ना तो उतना आपको बाद में खुद को बुरा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट कर दिया इस इंसान के साथ. बेस्ट है कि आप दो बातें करो, Handle. दोस्त बना लो. Right. सबसे बेस्ट चीज़ है कि दोस्त बना लो. दोस्त बनाने के बाद सामने वाला भी कंफर्टेबल होता है आपके साथ और आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो कि यार अब तो दोस्ती हो गई. Right. तो मैं तो उस तरीके से हैंडल करता हूँ. So when you told your parents that you want to become a model, you've already become a model. So did they accept it easily or? मुझे तो मॉडल बनने के लिए मम्मी ने कहा था Oh. कि मैं जब भी स्कूल में था तो मम्मी ने मुझे डांस क्लासेस और ये सारी जो कोकरियर एक्टिविटीज़ होती है इसमें हमेशा से मम्मी मुझे पुश करती थी कि तुम ये करो. तो क्योंकि मम्मी को खुद को बहुत दिल था कि मैं भी कभी कुछ स्टेज पे जाके परफॉर्म कर पाऊँ या ऐसा कुछ, तो शायद मेरे ज़रिए मम्मी ने ये सब चीज़ें करी. तो ऐसा मुझे कभी घर से वो था नहीं कि मॉडलिंग है तो कोई टैबू या कोई गलत तरीके का प्रोफेशन आप कर रहे हो. मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. शायद इसी वजह से मैं इतने टाइम से कर पाया ये चीज़ और कर भी पा रहा हूँ आगे, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टार्टिंग से. Right. So if Jitesh was not a model, what would he be doing? क्या करते? अगर मॉडल नहीं होते तो क्या करते? इसी चीज़ के आसपास कुछ ना कुछ कर रहा होता मैं, मतलब इस इंडस्ट्री से ही जुड़ा होता. प्रॉब्ली अगर मॉडलिंग नहीं तो फिर डायरेक्शन, एक्टिंग, बट ये स्टेज, लाइट्स, मेकअप, ये जो जितना स्पेस है, ग्लैम, इसी के आसपास घूम रहा होता मैं ज़िंदगी भर. उसके अलावा कोई डेस्क जॉब तो नहीं करता मैं कभी. So what is your experience? Can you give me some experience जो आपका बैक स्टेज में है, जो एकदम मेमोरी में है कि ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता. It may be bad or good. आपने मुझे सबसे पहला सवाल पूछा था कि सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हुई. तो मैं बचपन से ना ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. शायद इसलिए डांस इतना वो है मेरे, मतलब बहुत खास चीज़ है डांस मेरे लिए, और मैं इधर आके भी हर साल डांस ही करता हूँ. तो शायद इसीलिए बुला के लिया Everybody मुझे. say call Jitesh if you want dancing on the ramp. तो मैं एक शो कर रहा था, शायद मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरा 3rd या 4th ही शो होगा. और मैं फिटिंग के लिए गया और मैंने कहा डिज़ाइनर को कि मेरा गारमेंट का है. तो उन्होंने कहा कि आपका जो गारमेंट है वो शो स्टॉपर के घर पे गया हुआ है चूज़ करने के लिए. कुछ 4 या 5 गारमेंट्स थे उसमें से, तो एक गारमेंट था ही नहीं. तो फिर मैंने पूछा उसके असिस्टेंट को बाद में कि यार कौन शो स्टॉपर है जिसके लिए आपने मेरा भी गारमेंट भेजा हुआ है. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया मैंने. उसने कहा ऋतिक रोशन के घर पे गया हुआ आपका गारमेंट, तो अगर उसने जो गारमेंट वो चूज़ करेंगे उसके बाद जो गारमेंट्स आएंगे उसमें से कोई गारमेंट आपको मिल जाएगा. मैंने कहा ठीक है. अब मैं इसी में खुश हुआ कि कल ऋतिक रोशन आने वाले हैं शो में. अब मैं विंग में खड़ा हूँ और हम लोगों का सब वॉक करके हो गया. मेरी एंट्री के लिए साइड से ऐसे विंग के बस बाजू में खड़ा हूँ. मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे ना कुछ तो बहुत अमेजिंग ऐसी ऑरा है, कोई एनर्जी खड़ी है. और मैंने बस ऐसे मुड़ के देखा पीछे, ऋतिक रोशन. मैं किसी एक्टर को देख के आज तक ज़िंदगी में कभी स्टारस्ट्रक नहीं हुआ, बट द मोमेंट आई सॉ ऋतिक रोशन आई वाज लाइक ये कुछ तो अमेजिंग एनर्जी है. बट या वो बैक स्टेज का एक मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है. उसके अलावा बैक स्टेज में बहुत सारे फ़नी एक्सपीरियंसेस भी है. एक बार तो मैं सूट पहन के मुझे एंटर करना था, मेरे 2nd या 3rd चेंज के टाइम पे कोई फैशन वीक कर रहा था, मेरी पैंट नहीं थी. So I had to run in my boxers to other side of the wing, find my pants, wear it, then again come to this side. मेरा शूज़ पहन के फिर मैंने एंटर किया था. तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है.
तो ऐसे प्रॉब्लम सिर्फ हमको ही नहीं होते, ये backstage सबको होते हैं, हैं। ये नॉर्मल है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि आपको नॉर्म बन जाएगा कि हाँ ये तो होता ही है। राइट जैसे मुंबई के लोकल में भीड़ होती ही है, तो बैक स्टेज में कुछ ना कुछ बछड़ होएगी। Right. तो उसको हम कभी वो नहीं कर सकते कि अच्छा ये कैसे होगी। So, any message you want to give to the upcoming people, upcoming kids who want to become model? तो आपके एक्सपीरियंस से कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे? अपकमिंग मॉडल्स को मैं एक ही बोलूँगा कि आज के टाइम में ना इतना एजेंसीज एंड इतना कमर्शियल हो गई ये चीज़, तो आप जब भी इस चीज़ के अंदर आओगे, सबसे पहले तो अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आना कि कौन सी एजेंसी किस तरीके के मॉडल्स को हायर करती है, किस तरीके के मॉडल्स को साइन करती है, और आप किस ब्रैकेट में फिट होते हो, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप मुंबई आके आप जिस जॉनर के इंसान हो, जिस तरीके के मॉडल हो, और आप कोई गलत एजेंसी को अप्रोच कर लो और फिर रिजेक्ट कर दे, तो फिर आपको लगेगा यार मुझे रिजेक्ट ही क्यों कर रहे हैं। सही एजेंसी को स्टार्टिंग से अप्रोच करोगे तो सही काम मिलेगा। और इस चीज़ को मतलब मैक्सिमम टाइम पे थोड़ा पैशन की तरह ही रखो। ऑलवेज हैव समथिंग एल्स इन योर पॉकेट जो आपको सस्टेन कर पाए लंबे टाइम के लिए। क्योंकि हम जब भी छोटे शहर में बैठ के सोचते हैं ना कि मैं मुंबई जाऊंगा मॉडलिंग करूंगा, तो उस टाइम पे हमको सिर्फ मुंबई दिखती है, मॉडलिंग दिखती है। मुंबई में रहना जो होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं। वो रह के समझता है कि अच्छा यहाँ पर रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद छोटा सा एक काम है जो आप शो या कुछ काम कर लोगे। तो पहले अपनी सारी फाइनेंसेस सॉर्ट करो, फिर जाके मुंबई में कुछ काम Bombay is an expensive place to करो। stay. 100%। Yeah. So thank you, Jitesh. Thank you Most so welcome. much for being here. Likewise।